Yes, students, today we are going to start with the types of chemical reactions and their discussion. As you know, this is one of the most important topics of the class 10th chemistry, right? Let's start our discussion. In the previous lectures, we already have discussed about the chemical reactions, chemical equations, and about the balancing. We also have read about the characteristics of the chemical reaction, and we have seen that how to make the equation more informative by writing the phase of the reactants and the products, by writing the conditions which are necessary for the reaction, as well as by mentioning the change of heat. Okay, this much we already have done, and this is the time when we have to start with the discussion of our type of chemical reactions. So in general, we are having, or we can simply categorize all the chemical reactions into the five categories. That is the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement, and the oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions are also simply called redox reactions. All right. Now, when we are going to discuss about the combination reactions, those reactions in which two or more substances combine. See, name uska explain kar raha hai that combination reactions in which simple smaller molecules or elements combine to form a bigger molecule or something complex material, right? So, or two substances to combine and form a single substance are called combination reactions. The best example is in front of you, that is Mg plus O2 gives MgO, right? Many other examples are possible. For example, you can have hydrogen H2 plus O2 gives H2O. Have an eye on the reactions. In this reaction, you can see H2, two molecules of H2 and one molecule of O2 are combining to give two molecules of H2O, right? By the combination of two smaller molecules, some bigger molecule is formed. All of you are able to see this? Sorry. All of you are able to see this reaction? Right? Okay. Let's move further. इन जनरल बेटा सारे कम्बिशन रिएक्शंस आपके कॉम्बिनेशन टाइप के हो जाएंगे. C+O2 gives CO2, H2 plus Cl2 gives HCl, Na plus Cl2 gives NaCl, so on and so forth. Fe plus S gives FeS, आयरन सल्फाइड. अगर आप ध्यान रख सके एनालिटिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH फॉर्म होगा. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका क्विक लाइम है. क्विक लाइम, इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे वाटर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था हीट भी रिलीज होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर फॉर्म हो जाएगा. अभी इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं. जो इसका बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, दैट इज नोन एज लाइम वाटर. ओके, गेटिंग मी ऑल ऑफ यू? Yes, these reactions I already have discussed you many a times that see this, whenever we are discussing about the line, being a class 10 student, you must know each and everything. Okay, first of all, we are having calcium carbonate. When we heat calcium carbonate, it is forming quicklime, that is calcium oxide plus carbon dioxide. When quicklime, this is the first reaction. Okay, in the second reaction, what we do, we add quicklime to the water, and this is an exothermic reaction. Just now I have discussed about that, which forms your calcium hydroxide, that is slaked lime, or simply you can say lime water in case of highly diluted solutions, plus
calcium hydroxide, and then we are having what? Nothing else. Yeah, heat was released. Okay, understanding. And a part of that, now when we will let carbon dioxide to pass through calcium hydroxide, again formation of calcium carbonate will take place and H2O will be formed. This is why we are using it in the whitewash. Okay, first of all, calcium carbonate, that is limestone, is heated to produce calcium quicklime, that is calcium oxide. We purchase calcium oxide from the market, okay, for the purpose of the whitewash, as it is the Deepavali season, you know. So for whitewash, in general, we people are not doing whitewash nowadays, but still, पहले बहुत पॉपुलर था और अभी भी सेमी अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में बहुत होता है, ठीक है. Whitewash मतलब चूना का पुताई. Okay, nowadays we are having polymer paints etc, but still वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं और यूज किया जा रहा है. सो जब आप क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हैं, it is an exothermic reaction and your calcium hydroxide, that is slaked lime, is formed. This slaked lime is used, applied on the walls, okay, and on the wall only it is getting the exposure of air, and from air it is taking the carbon dioxide to form calcium carbonate, which is insoluble in water again. That's why एक बार आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद रेन होगा तो वो फर्स्ट रेन में ही नहीं बह जाएगा. ओके, जब तक उसका सरफेस उसको नहीं रिलीज करेगा तब तक वो नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. और आपकी वॉल को कोई 500 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट नहीं करने वाला. ओके, बात समझ में आ रहा है? फाइन, लेट्स मूव ऑन. It's my suggestion to all online as well as offline students to have a pen and paper when we are discussing the things. Other brilliant example can be ammonia plus hydrogen chloride. Students, we will take this reaction as a test reaction whenever we will study about the, suppose आप लैब में वर्क कर रहे हो और अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है, हाउ विल यू टेस्ट? तो आप एक ग्लास रॉड हाइड्रोजन क्लोराइड में डिप किया हुआ लेकर के जाएं, वहां पर आपको अमोनियम क्लोराइड का डेंस व्हाइट फ्यूम बनता हुआ दिखेगा. राइट, डेंस व्हाइट फ्यूम्स आने लगते हैं अमोनियम क्लोराइड के. बात समझ में आ रही है? So it is a very important reaction from the point of view of analytical chemistry. ये अभी काम नहीं आएगा for higher classes, okay? Because analysis बहुत ज़्यादा आपके यहाँ नहीं है अभी. Understanding what I'm saying? Then we are having carbon monoxide, which react with oxygen to form carbon dioxide. This is also a sort of chemical combination reaction, okay? Sulfur dioxide reacts with oxygen to produce sulfur trioxide. This reaction can be written as SO2 plus O2 gives SO3. Decomposition reactions, those reactions. And now this is it for the combination reactions. All right. Now we are going to have our decomposition reactions. What are decomposition reactions, students? Yeah. What are decomposition reactions? So the reactions in which something is broken, decomposed. Okay, some bigger molecule is broken into the smaller molecules are called decomposition reaction. The first reaction is as just now I have told you, calcium carbonate when heated gives calcium oxide and carbon dioxide. Okay, very important reactions. This chain of reaction is very important from class 10th point of view. Okay, examination point of view. Understanding what I'm saying? Let's move further. Then we can have the decomposition of potassium chlorate. Please see on the screen, all of you, and don't lose your attention. Potassium chlorate, KClO3, on heating will produce KCl plus 3O2. Okay. We can also have the decomposition of ferrous sulfate, very important reaction again.
द क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर विच इज रिलीज्ड बाय सीबीएसई दिस ईयर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसी रिएक्शन का है, ठीक है। व्हाट इज दैट? राइट टू व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड, राइट टू ऑब्जर्वेशंस, ओके। सो व्हाट टू ऑब्जर्वेशंस यू पीपल कैन सी? फर्स्ट, एक जो आपका ग्रीन कलर का सब्सटेंस था, एक्चुअली बेटा ये ग्रीन कलर का नहीं होता है FeSO4, आई एम सॉरी टू से दिस, गलत लिखा हुआ है इस बुक में, ओके। We are having FeSO4 dot 7H2O, ये आपका ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, इसको बोलते हैं हेप्टाहाइड्रेटेड आयरन सल्फेट, ओके। ये 7 आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सॉल्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वहां पर कलर इंपार्ट हो रहा है और ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, यू कैन सी द डायग्राम, राइट। इस तरीके के ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और आप इसको हीट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी रिमूव्ड एंड इट विल फॉर्म FeSO4 which is a white powder, FeSO4 ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर FeSO4 को आप फर्दर हीट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? रेड कलर का आयरन ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, फेरिक ऑक्साइड, और वी कैन से आयरन 3 ऑक्साइड, क्लियर। इसका लेटेस्ट नेम है आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 1 2 3, ये ब्रैकेट में लिखते हैं रोमन नंबर्स में। This is actually its oxidation state. About the oxidation state, you people will study in detail in higher class, that is in your class 11. But for time being, you can understand that the oxidation state is the valency state of iron. Okay? ये अभी के लिए definition है, आगे definition गलत हो जाएगा because oxidation state is different thing, valency is different thing. Okay? So इतना समझ में आ रहा है? This is your iron 3 oxide. SO2 गैस रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड SO3 गैस रिलीज होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 जो रिलीज हो रहा है इसकी वजह से आपको बर्निंग सल्फर का स्मेल आ रहा होगा, ठीक है। अभी आपको एक दिन लैबोरेटरी ले चलेंगे तो आपको बर्निंग सल्फर का स्मेल चेक करवा देंगे, ओके। उसके बाद आप थोड़ी देर खांसेंगे क्योंकि उसका पंजेंट चोकिंग स्मेल होता है, ठीक है, नोज को ब्लॉक कर देता है थोड़ी देर के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं टेस्ट करवा दूंगा इसका, क्लियर है। बहुत ज्यादा मत करिएगा, जस्ट फॉर द आइडिया, ओके। इतना बात समझ में आ रहा है? अमोनिया का भी बहुत पंजेंट शॉकिंग स्मेल होता है, बिल्कुल ब्रेन में बैठ जाता है 10 मिनट के लिए, फाइन। और ये सब इन गैसेस का एक्सपोजर भी बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, ओके। कई बार तो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी रिलीज होती हैं व्हिच कैन बी टॉक्सिक इफ टेकन इन हायर अमाउंट्स, क्लियर हो रहा है। सो लैब में जब भी टेस्ट करें तो बहुत संभल करके करें और एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस में करें। ये मेंशन मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको सल्फर मिल जाए वो ऐसा ट्राई कर सकता है, सो प्लीज डोंट डू इट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सपर्ट, ओके। इतना बात समझ में आ रहा है? Sorry. Yeah. Let's move on. The same reaction is explained and its decomposition. Once again, very important. Students सोच रहे होंगे सारी important reactions ही सर पढ़ा रहे हैं आज, but actually these reactions are very important बेटा। ये सब कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। और इस रिएक्शन का लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन लिखने के बाद तो आसान है, ये रिएक्शन बैलेंस करने में बड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। आप इस रिएक्शन को लिखिएगा और आर्बिट्रेरली बैलेंस करके कोशिश करिएगा, यू विल फाइंड सम प्रॉब्लम। तो इट इज माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट लर्न दिस रिएक्शन, ओके। इसमें ऑक्सीजन बैलेंसिंग प्रॉब्लम करता है बिकॉज ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। नोट डाउन दिस रिएक्शन एंड लर्न इट। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, कलर भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। एक आपका कलरलेस सॉलिड आप हीट करेंगे तो येलो कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हुए दिखेंगे,
this reaction was also or is also in your practical syllabus. Okay, brown fumes of nitrogen dioxide. Okay, done. इस रिएक्शन को लैबोरेटरी में करते समय जब आप हीट करके टेस्ट ट्यूब धुल रहे हैं तो पहले हीट करने के बाद 5 मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब रख दें. ओके, जब हाई टेम्परेचर में आप अचानक से कूलिंग करते हैं तो ग्लास में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है और टेस्ट ट्यूब टूट जाता है. तो या स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे दोज वर बिकॉज ऑफ द हीट. ओके, उनमें जो ब्रेक डाउन हो रहा था वो हीट एनर्जी की वजह से हो रहा था. सी बेटा, हमारा सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी divided into 3 categories. Decomposition reactions can be divided into 3 categories. Okay, thermal decomposition, जिनमें हम हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन करा रहे हैं. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या उसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डिकम्पोजिशन करा रहे हैं. एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ओके, जिनमें हम लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करा रहे हैं. So I will give you till now whatever examples I was giving you were the examples of thermal decomposition. Okay, now we are going to see the example of electrolytic decomposition and then we will go for photolytic decomposition. Understood? Let's have some examples of electrolytic decomposition. See, we are having acidified water. Pure water से बेटा electricity pass नहीं हो पाएगा. So we are having some acidified water. उसमें कुछ molecules हमने acid के add कर दिए हैं, जिसकी help से आसानी से आपका water ionized हो जाए. क्योंकि हमें किसी भी liquid से electricity pass कराने के लिए उस liquid में ions present होना जरूरी है. I hope आप लोगों को ions के बारे में पता है. Ions का मतलब होता है positive charged ions or negative charged ions, right? The particles or atomic species or group of atoms which are having the charge over them are called ions. Okay, so yes, this is the reaction for the electrolytic decomposition of water. So what has happened? It is means I must say acidified water. Okay, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा. H plus represents acidic medium and water का आप decomposition करा रहे हैं तो water will form H plus ions and OH minus ions in its aqueous solution. वहां से इलेक्ट्रोलिसिस होगा और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको डिटेल में समझ लीजिए तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे. दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमने एक कंटेनर रखा हुआ है. ओके, कंटेनर के अंदर एसिडिफाइड वाटर है. फिर हमने कार्बन के रॉड्स रखे हैं. दीज आर इलेक्ट्रोड्स जिस पर नेगेटिव चार्ज है. ध्यान से देखें, उसका नेम कैथोड रखा गया है और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका नेम एनोड रखा गया है. क्लियर? व्हाई? क्योंकि जिस पर नेगेटिव चार्ज है एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट. बेटा जब आप वाटर लोगे तो HOH एसिडिफाइड आपने लिया, H प्लस, ये आयनाइज होकर के H प्लस आयंस बनाएगा और OH माइनस आयंस बनाएगा. क्लियर हो रहा है? मींस इस वाटर इस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस भी प्रेजेंट है और OH माइनस आयंस भी प्रेजेंट है. Yeah, this much is understood, students. So I was telling you, यहाँ पर आपका H प्लस एंड OH माइनस आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में. सो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? लेट मी शो यू.
कैथोड पर जो रिएक्शन होगा बेटा आपका H+ आयन, कैथोड मैंने बोला नेगेटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है वहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा। अब कैटायन जिस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा दैट इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। सो एंड विल फॉर्म हाफ H2, राइट। इसको हम और बेटर तरीके से, सॉरी, यस, इसको हम और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट 2H plus 2 electrons are giving you what? H2, okay, fine. And जो आपका एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सो OH माइनस आयंस जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे, राइट। हालांकि एक्चुअल में जो रिएक्शन है उसमें वाटर भी बन रहा होगा, ओके, 2 molecules of water. जो बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन है मैं उसको लिख देता हूँ, 2 molecules H2O का रिलीज होगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, राइट, एंड 4 OH माइनस हमने लिया होगा, देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनेगा। क्लियर हो रहा है इतना? यस, वेट स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ठीक करना है मुझे, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ऑलराइट। ये एनोड पे होने वाला रिएक्शन है, तो 1 मिनट ध्यान से देख लीजिए, पहले बाद में नोट करेंगे। यहाँ पर मैं टोटल 4H+ कर दूं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2H2 रिलीज हो जाएगा, ओके। और सॉरी फॉर लूजिंग माय कंसंट्रेशन, ये आपका 4OH माइनस है, राइट, सब एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड, ओके। अब एनोड और कैथोड का रिएक्शन जब आप ऐड करोगे तो देखिए क्या होगा, ये एनोड में हाफ रिएक्शन, कैथोड का हाफ रिएक्शन है, ये एनोड का हाफ रिएक्शन है, इन दोनों का सम आप लेंगे तो 4H+ एंड 4OH माइनस यानी 4HOH, HOH मींस वाटर, 4HOH गिव्स, अच्छा ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल कर सकेंगे, 2H2 प्लस O2 प्लस
2H2O, राइट। ये 2H2O और यहाँ से 2H2O कैंसिल हो जाएगा। सो आपका ओवरऑल रिएक्शन निकल करके आएगा जस्ट 2HOH plus, or on undergoing electrolysis gives H2 plus O2। और जो आपका H2 है इसका 2 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, राइट। राइट इट लाइक दिस, ओके। ये जो H2 रिलीज हो रहा है, इट इज रिलीज्ड एट वेयर, कैथोड। हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज होगा और ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो है वो होगा 2:1 में। हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम्स, देन ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। Let's move further, students. Similar reaction can be your electrolysis of NaCl. देखिए NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस दो तरीके से हो सकता है। इसकी डिटेल्ड एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस लिख करके आना, ये आपका होमवर्क है, ओके। एंड वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जब आप NaCl का मॉल्टेन NaCl, देखिए किसी आयनिक सॉलिड से इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए। या तो हम उसे मॉल्टेन फॉर्म में ले लें, मॉल्टेन का मतलब होता है इतना हीट कर दिया कि वो पिघल गया, ओके, तभी तो आयंस का मूवमेंट पॉसिबल होगा। या फिर उसको हम एक्वा सॉल्यूशन में ले लें। तो अगर मॉल्टेन फॉर्म में लेंगे तो वहां पर डिकम्पोजिशन के बाद हमें एनोड का कैथोड पर मिल जाएगा Na+, सॉरी Na+ नहीं, Na सोडियम मेटल, एंड एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा। If electric current is passed through aluminium oxide, then we will get aluminium metal and oxygen. Clear? और अगर बेटा हम NaCl एक्वस फॉर्म में ले लेंगे तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। एसिड बेसिस सॉल्ट में आप लोग पढ़ेंगे उसको, सॉरी मेटल, यस, एसिड बेसिस सॉल्ट में भी पढ़ सकते हैं और मेटल नॉन मेटल में भी। दरअसल वो रिएक्शन, जस्ट लेट मी शो यू। ऑलराइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो गया। इस स्पेस में मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉल्टेन NaCl के रिजल्ट ऊपर है, वहां पर Na और Cl2 बनता है। अगर हम इसे एक्वस फॉर्म में ले लें, मींस NaCl सॉल्यूशन इन वाटर, तो बेटा वहां पर एक्चुअल में होगा क्या, आयंस आपके H+ और OH- के भी बनेंगे और Na+ और Cl- के भी बनेंगे। सो यू विल गेट H2 एट कैथोड। कैथोड पर जो आपको गैस मिलेगा वो हाइड्रोजन मिलेगा, एंड Cl2
at anode and NaOH aqueous solution में सोडियम हाइड्रोक्साइड का aqueous solution आपको मिल जाएगा, right? This reaction is widely used in the synthesis of hydrogen, chlorine and NaOH. Understood? इससे हम ये चीजें बना सकते हैं. बात समझ में आ रही है? Fine. This was about the electrolytic decomposition. अगर हम बात करें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की, तो स्टूडेंट्स दो एग्जांपल आपको लर्न रखने हैं. सिल्वर क्लोराइड, इसको आप लाइट के प्रेजेंस में हीट कर, सिर्फ इसको लाइट सनलाइट में रख दीजिए, ओके? तो क्या होगा, सिल्वर बन जाएगा और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा ये, ओके? इसी तरीके से अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड ले लें AgBr, तो इट विल फॉर्म Ag plus Br2, ओके? Cl की जगह पर आपको Br कर देना. सिमिलर रिएक्शन है. दिस रिएक्शन, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन कैन बी वाइडली यूज्ड, और इसको यूज करते थे हम इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ओके? फोटोग्राफी में, फोटोग्राफिक फिल्म्स में इसको लगा देते थे. थोड़ी जो बहुत ओल्ड एज कैमरा होते थे, आज के कैमराज में नहीं, ठीक है? बहुत ओल्ड एज कैमराज होते थे. तो अगर आप लोगों ने कोई बहुत पुराना मूवी देखा हो या कभी वैसा शूटिंग देखा हो, तो एक कैमरा होता था बेटा जिसको काले कपड़े से ढक करके रखते थे, राइट? और फोटोग्राफर उस कपड़े के अंदर जाता था, फिर 1 सेकंड के लिए जो है स्क्रीन खुलता था और बंद हो जाता था. तो जितने पोर्शन से लाइट आकर के पड़ता था स्क्रीन पर, उतने पोर्शन का AgBr या AgCl डिकम्पोज हो जाता था और उसका पैटर्न बन जाता था. बात समझ में आ रहा है? ये प्रिंसिपल था उसके पीछे का. खैर, आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल दैट इट वाज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ये इसका एप्लीकेशन था. इसके अलावा और भी बहुत एप्लीकेशंस है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के. जब आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे डिटेल में क्रेब्स साइकिल में, तो आप देखेंगे कि जब इसका ब्रेकडाउन होता है, सॉरी, फोटोलिसिस में जब आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देखेंगे तो वहां पर पहले वाटर का फोटोलिसिस होता है. वाटर ऑक्सीजन और OH और H+ में डिकम्पोज कराया जाता है इनसाइड द प्लांट बॉडी, ओके? और वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है. आप नॉर्मल फोटोलिसिस नहीं करा सकते हैं, ठीक है? Displacement reactions, fine. So I think displacement reactions will take in the next class. Till then, keep learning, keep studying. Thank you, class.